नमस्कार भाइयों बहनों, गुड इवनिंग and welcome to another episode of my YouTube. Today's episode is a rather tense episode, I would say, not the happy ones that we generally do. Today we are talking about crime against children and what we are doing about it and what society should do about it. It's a very serious issue, and we have found some very strange rulings recently, and we find that lack of typical outrage and lack of that anger against the kind of treatment that children are getting in our society today. And we have with me to discuss this very important topic, Shri Priyank Kanungo, Chairman of National Children's Right Protection Forum, a Commission for Child Rights, NCPCR, and we have with me Rami Desai, who is a social activist, and I will introduce both of them. And Pallavi Ghosh will be joining soon. In the meanwhile, we'll start the discussion. As you know, Priyank Kanungo was a member of NCPCR from 2015 to 2018. And from 2018, he has been chairman. Due to his sterling performance, he has been reappointed again in 2021. And the mandate of NCPCR covers monitoring of the right to education, Juvenile Act, PUCSO Act, and Child Labor Act. It's a vast agenda, and surprisingly, it was not very known commission, not very high profile. And we could hear of National Human Rights Commission. We talked about National Commission for Women, but with Priyank Kanungo taking over as a very, very proactive chairman, he has been able to bring to fore what can be done if a person determined to do something can do within the framework of the Constitution. And he has been very active. As you know, any complaint, even from the social media, is picked up immediately, action is taken. So we're fortunate to have Priyank Kanungo with us today. Rami Desai is a social activist, is a researcher, a security analyst. She was very active in Northeast and was director of the Northeast studies there, and was studying Naga insurgency and the social issues in Northeast, and is still very active in various other fields. Now she's mostly in Delhi and also visits Northeast regularly. Pallavi will join soon. We know she's a very well-known face on TV, a media person and a journalist of repute for long years. So we will begin the discussion. I was reading some figures, Priyankji. I noticed that the rise in child crime from 2016 to 2017 was 17%. It dropped to 9% in 2018. And by the figures of 2019, it has dropped to 5% growth of child crime, of course. There are huge risks to the children today. Most of them arise from the net and also from the social behavior of our own society. 60% of internet users are children and young people. A study of US National Center for Missing and Exploited Children shows that every day 25,000 images of child abuse are uploaded every day from India, which is 12% of the global images, which is a very significant numbers. We have seen recently the exploitation of children by anti-government agitators, by people who go on the road using children as a shield. We have seen children being used as shield first in Kashmir, then we also seen them used in Shaheen Bagh. Recently, the riots that have taken place in various places, we have also seen young boys, maybe teenage, less than teenage, taking up processions, shouting slogans, and being miscreants, stone throwing, etc. So it's a rather worrying. I've seen. We also seen young brides being taken in from Hyderabad, famous for these activities. A couple of months back, we heard about Vismaya, who committed suicide because she was being forced to convert. And last a couple of weeks back, we heard about a 4-year-old child who was raped and murdered very cruelly. I will not get into graphic details. They're horrid, as horrid or worse horrid than the famous Nirbhaya case. And not only he was proven guilty, he was proven guilty on all the counts in various courts. But in Supreme Court, finally, he was released. His death sentence was commuted and his life term was also reduced, saying that every criminal has a future.
and that is why I'm a topic of the subject today, about the children also have their future. And then we have very strange ruling of another court which said that groping girls is, without removing clothes is not really a crime. Then a teenage girl was very forcefully asked to listen to the proposal of marriage from a person, and that was also not considered a crime. So these are kind of rulings that disturb us a lot. The type of crime we hear against girls and girl child and even boys are disturbing. So in this scenario, what do you think the government is doing? And as a chairman of NCPCR, Priyank, I would love to start with you. What do you think of this, and what can be done by not just commission but also by citizens of India and the legal system? Over to you, Priyank. सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण और विषय पर, इतने संवेदनशील विषय पर इतना अच्छा एक पैनलिस्ट का ग्रुप इकट्ठा किया। और ये बात बहुत जरूरी है, जो काम आज आपने शुरू किया है। जैसा आपने कहा कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया हम क्या कर सकते हैं, तो यही वो शुरुआत है जो आज से आपने की है। हम सबको इस बारे में बात करनी चाहिए। हम सबको इस बारे में जो अपनी चिंताएं हैं, वो चिंताएं समग्र रूप से व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हम साइलोज में करके नहीं देख सकते। देखिए, एक बहुत लंबे समय तक, मैं कहूँगा 6-7 दशकों तक इस देश में ऐसा हुआ है कि जो बच्चों के इश्यूज थे, जो बच्चों की समस्याएं थी, उन्हें पर्टिकुलरली एनजीओस का सेगमेंट माना जाता रहा। इनफैक्ट कई दफा सरकारों ने भी अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाई कि बच्चों के सारे विषयों को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया एक तरीके से एनजीओस को। और एनजीओस जो है वो उनके अपने अपने दायरे होते हैं, जहां से जैसा फंड आता है वैसा उनको काम करना पड़ता है। कुल मिला के ये हुआ कि विदेशी फंड से चलने वाले एनजीओस जब इस पूरे के पूरे सिस्टम को ड्राइव कर रहे थे, तब भारतीय परिप्रेक्ष्य की समस्याओं को हमने तो मुझे आवाज आपकी टूट के आ रही है, कुछ मेरी समस्या पता नहीं मेरे को आ रही है ऐसे। आपको आ रही है तो मेरी जारी रखिए। सॉरी। ठीक है, तो मैं वही आपको कहना चाह रहा था कि जब हमने देश की समस्याओं को विदेशी चश्मे से देखना शुरू कर दिया, तब बहुत लंबे समय तक समस्याएं बड़ी होती रही, छोटे छोटे घाव नासूर बनते रहे, और आज इन समस्याओं का विकराल रूप हमारे सामने देखने को आ रहा है। जब सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से बचेंगी, तब इस तरीके की स्थितियां बनेंगी। मैं बड़ी स्पष्टता से कहूंगा कि सामाजिक व्यवस्था के जो अलग अलग अंग हैं, उनमें जो जिस प्रकार की एक वातावरण बनाने की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जो देश की समाज की व्यवस्था है, उसमें नियंत्रण का सबसे बड़ा विषय होता है। नियंत्रण या तो परिवार के हाथ में होगा, या नियंत्रण सरकार के हाथ में होगा, या नियंत्रण बाजार के हाथ में होगा। हमने देखा कि बहुत लंबे समय तक सरकारों ने नियंत्रण खुद के पास ना रख के एनजीओस के माध्यम से एक प्रकार का बाजार ये बना दिया। और जैसा आपने जिक्र किया सोशल मीडिया का, इंटरनेट यूजेस का इतना ज्यादा एक्सपोजर है कि परिवार के हाथों से नियंत्रण जाता रहा। तो कुल मिला के सब तरफ से जो स्थितियां बनी हैं, उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो सेक्सुअल एब्यूज के जो पॉक्सो के मामले हैं, उनमें कन्विक्शन रेट केवल 40% इस समय देश में दर्ज किया जा रहा है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि राइट फ्रॉम बिगनिंग, केस के सूचना मिलने से लेकर रजिस्टर्ड होने से लेकर के कन्विक्शन तक जाने तक, पॉक्सो जो विधि व्यवस्था के एक मानक स्थापित करता है और नियंत्रण की के इंडिकेटर्स, विभिन्न इंडिकेटर्स और तरीके बताता है, उनका पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा। मैं आपको यहाँ बता दूं कि पॉक्सो एक्ट दुनिया का सबसे सख्त कानून है, और ये भारत इकलौता ऐसा देश है संभवतः जहां पर कि एक ऐसा कानून जो ना केवल बच्चों के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार में प्रिवेंशन की भी बात करता है, बच्चों के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार में
सजाए मौत देने तक की बात करता है, और बच्चों को रिहेबिलिटेट करने का, जो विक्टिम है उनको समाज में पुनर्स्थापित करने की बात भी एक ही कानून करता है। बहुत अनूठा कानून है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो आप सोशल मीडिया की और इस तरीके की चीजों की, इंटरनेट की बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में जो कानून है वो ये कहते हैं कि बच्चों का पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करना गलत है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पॉक्सो एक दुनिया का सबसे सख्त कानून है, वो ये तो कहता ही है कि बच्चों का पोर्नोग्राफिक कंटेंट में इस्तेमाल नहीं होगा, वो साथ साथ ये भी कहता है कि बच्चों को किसी प्रकार का पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाया भी नहीं जा सकता। तो कानून के नजर में, कानून के माध्यम से भारत सरकार जितने सख्त कानून संसद में पेश कर सकती है, और संसद में भी मैं पॉक्सो के अमेंडमेंट के दौरान या जेजे एक्ट के अमेंडमेंट के दौरान प्रत्यक्ष साक्षी होने के रूप में आपको ये बता सकता हूं कि भारत ने, जब सरकार ने ये अमेंडमेंट्स यहाँ प्रस्तुत किए कानूनों को और सख्त बनाने के लिए, तो सभी ने उसको स्वीकार किया और संसद में बड़े स्वस्थ माहौल से ये कानून बनाए गए। सरकार की ओर से जो किया जाना चाहिए था वो मैक्सिमम कानून बनाने के माध्यम से किया जा रहा है। दूसरा पक्ष जो हम इसका देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 40% कन्विक्शन रेट है केवल, लेकिन जब हम दिल्ली में देखते हैं तो दिल्ली में ये कन्विक्शन रेट 70% तक गया है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट का डेटा है। तो दिल्ली में ये अंतर क्यों? तो उसका सीधा सीधा कारण ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस प्रोफेशनली ज्यादा इक्विप्ड है। हमने ये देखा, जैसे भारत के गृह मंत्री वर्तमान में पुलिसिंग को जिस तरीके से चेंज करने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, वो बार बार कहते हैं कि हमको प्रोफेशनल पुलिसिंग की जरूरत है। अब हम 1860 के कानूनों के हिसाब से देश को नहीं चला सकते। उसी प्रकार 1860 के हिसाब से बने पुलिस मैनुअल, पुलिस एक्ट, पुलिस की जो सेवाएं, पुलिस की जो व्यवस्था, उसके हिसाब से नहीं चल सकता। पॉक्सो के कानून में एक और चीज जो जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो विक्टिम पर नहीं है, वो एक्यूज्ड पे है। मतलब मैं सीधे सरल शब्दों में कहूं तो अगर कत्ल का एक मुकदमा है, अगर हत्या का एक मुकदमा है, तो जिसकी हत्या हुई है उसके जो विक्टिम का पक्ष है, उस पक्ष को ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक्यूज ने, इसने ये हत्या की है, जो सरकारी वकील का पक्ष होता है। लेकिन पॉक्सो एक्ट ये एज्यूम करके चलता है कि बच्चा जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है यौन दुर्व्यवहार का, यौन शोषण का, बलात्कार का, कानून एज्यूम करके चलता है कि वो दोषी है, और उस एक्यूज्ड को ये सिद्ध करना पड़ता है कि वो दोषी नहीं है। अब बच्चे को हमको हथियार देने पड़ेंगे, ये लड़ाई है, उसमें उसको हमको आयुध देने पड़ेंगे। उस आयुध में सबसे महत्वपूर्ण आयुध है फॉरेंसिक जांच, फॉरेंसिक एविडेंसेस, जिसका भारत के कई राज्यों में पुलिसिंग में नितांत अभाव है, एकदम नहीं हो रहा है। अब दिल्ली पुलिस कन्विक्शन 70% इसलिए कर पाती है, वेल इक्विप्ड है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान देती है, सीधे गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है, तो हीले हवाले का जो जो एक गुंजाइश होती है वो कम हो जाती है। राज्यों को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा मामला जो आता है वो आता है पुलिस की ट्रेनिंग का। पुलिस की ट्रेनिंग का कई राज्यों में नितांत अभाव है। मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के कई मामलों में हमको पुलिस को पॉक्सो की सामान्य धाराएं समझानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं। उनको कई मामलों में सामान्य ट्रेनिंग का अभाव है। हमको बिहार का तो मैं आपको अनुभव बताऊं कि एसडीओपी लेवल के ऑफिसर्स को भी हमको पॉक्सो की धाराओं के बारे में बताना पड़ता है। तो रेगुलर रिगरस ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, जिसका एक अभाव हमको देखने को आता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि जब मामला न्यायालय में चला गया तो जहां रिहेबिलिटेशन की बात है, देखिए कन्विक्शन को रिहेबिलिटेशन से सीधे सीधे जोड़ के आपको देखना पड़ेगा। जो परिस्थितियों में बच्चे के साथ रेप हुआ है, बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ है, अगर उसकी आर्थिक स्थिति विषम है, अगर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, तो जाहिर है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ एक्यूज्ड का पक्ष आर्थिक ताकत की दम पे करता है, धन बल के दम पे करता है। तो यहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन का अमाउंट उसको मिलना चाहिए, वो अमाउंट एक बहुत बड़ा सहारा होता है। और रिहेबिलिटेशन का पूरी दुनिया में, कंपनसेशन का पूरी दुनिया में एक सिद्धांत है कि विक्टिम को इतनी ताकत दो कि वो होस्टाइल ना हो पाए। तो यहाँ पे कंपनसेशन का अमाउंट नहीं जा रहा है, और उसमें हमको
लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से कंपनसेशन के लिए प्रोसेस की जाती है, जो न्यायालय देता है। कहीं ना कहीं सरकारें न्यायालय को कंपनसेशन की बात बताने में विफल हो रही हैं, जिससे कि बच्चों को कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा है। कमीशन ने जिन मामलों में जांच की है उसमें हमने ये पाया है कि कंपनसेशन के अभाव में बहुत से मामले दम तोड़ देते हैं। चौथी बात, जो पुलिस प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो वकील हैं, उनको न्यायालय में जिस तरीके से बात रखनी है उसके बारे में भी एक पूरे के पूरे मैनुअल के माध्यम, एक पोक्सो एक्ट पूरी प्रक्रिया बताता है। मसलन बच्चा एक्यूज्ड का सामना नहीं करेगा, लेकिन ये हो नहीं पाता। देखिए, एक बच्चे को जब रेप किया है और एक्यूज उसके सामने खड़ा हो, बच्चा ट्रॉमाटाइज्ड हो जाता है, बोल नहीं पाता। तो कोर्ट रूम इस तरीके के होने चाहिए कि जज साहब बड़ी कुर्सी पे ना बैठे हो, जज साहब ऊंची कुर्सी पे ना बैठे हो। ये कानून कहता है, इनका पालन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट्स हमारे पास नहीं हो पा रही है। कानून कहता है कि पॉक्सो स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, तो जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं उनको ही पॉक्सो स्पेशल कोर्ट बना देने से तो काम नहीं चलेगा। रतन जी, मैं आपको यहाँ पे बड़ी स्पष्टता से खामी जो बताऊंगा, तो सुनकर आपकी दर्शकों की जो आंखें हैं वो चौंधिया जाएंगी ये सुनकर कि क्या हो रहा है। पॉक्सो कानून कहता है कि 1 साल में किसी भी मामले का दर्ज होने से लेकर के उसकी ट्रायल खत्म होके फैसले तक वो आ जाना चाहिए। 1 साल का समय देता है। अब स्पेशल कोर्ट जब एक्सक्लूसिव नहीं है, एग्जिस्टिंग किसी कोर्ट को जब स्पेशल कोर्ट बना देते हैं, तो जज साहब अपना रोस्टर बना देते हैं कि हफ्ते में हम गुरुवार को पॉक्सो के मामले सुनेंगे, जिससे कि वहां वर्दी वाले पुलिस वाले ना रहे, बाकी सब चीजें हटा दी जाएं, जज साहब ऊंचे कुर्सी पे ना बैठ के नीचे बैठने का कोशिश करें, ये सब चीजें बिला बिला जो कुछ भी है। हुआ क्या, जो पॉक्सो का मामला फास्ट ट्रैक चलना था, फास्ट ट्रैक चल के रोज रोज सुनवाई हो के हमें 1 साल में खत्म करना था, वो हफ्ते में केवल 1 दिन सुना जा रहा है। बिल्कुल। तो बजाय फास्ट ट्रैक होने के वो और एक लॉन्ग ट्रैक पे चला जाता है और मामला कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। इसके अलावा कानून ये कहता है कि जो भी सवालात बच्चे से होंगे वो इंटरप्रेटर की मौजूदगी में होंगे, ट्रांसलेटर होगा, सपोर्ट पर्सन होगा, लेकिन न्यायालयीन व्यवस्था में मौजूदा परिस्थितियों में इन सब की रिगरस मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। ये अन्य कई सारे कारण हैं जो पॉक्सो के इतने प्रभावी कानून होने के बावजूद भी जमीन पे उसका क्रियान्वयन ठीक ठीक नहीं कर पा रहे। आपने प्रियांक जी बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में हमें वो बातें बताई जो जनरली एक जनसाधारण को पता नहीं होती। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कानून कर सकता है, क्या कानून कर रहा है, कहाँ पर हम कम पढ़ रहे हैं, इसकी भी जानकारी आपने दी। और जो आपने सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में आपने समझाया उस पर फिर आएंगे हम। लेकिन पहले एक और विषय जो जिसके ऊपर आप काफी एक्टिव देखे जाते हैं वो है कि बच्चों का मिसयूज, पॉलिटिकल मिसयूज, जिसके ऊपर आप बहुत चिंता करते हैं, जिसके बाद तुरंत एक्शन लेते हैं, चाहे वो कोई मोर्चा हो, चाहे वो किसी प्रकार का धरना हो या किसी और प्रकार का दुरुपयोग हो। तो उसके बारे में आपके पास कैसे कानून है और ये ऐसा ऐसा जो हो रहा है इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, बड़ी स्पष्टता से कहूंगा, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह किया जा रहा है। एक सो कॉल्ड एक्टिविस्ट है हर्ष मंदर, आपने नाम जाना होगा, एनार्किस्ट। हर्ष मंदर और उनसे जुड़ी हुई एनजीओस के देश में 50 से ज्यादा चिल्ड्रन होम हमने पाए। उन चिल्ड्रन होम्स में बच्चों को लाके रखा गया और वो अर्बन पॉवर्टी से अफेक्टेड बच्चे हैं। इनमें ट्राइबल एरिया के, रूरल एरिया के बच्चे नहीं हैं। ये शहर के वो बच्चे हैं जो डिप्राइव्ड परिवारों के हैं। इनके माता पिता हैं, परिवार है, तो बजाय परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध होने के, स्ट्रेंथन होने के अवसर देने के, उनके बच्चों को ले आया जाता है और ऑर्फनेज टाइप स्ट्रक्चर्स में रखा जाता है। हमने ये पाया कि वहां पर उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है क्यों उनको सरकार का विरोध करना है। अच्छा। और दिमाग में इस तरीके का विष खोला जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ बताऊंगा। इनके बिहार के पटना के एक चिल्ड्रन होम में जब मैंने विजिट किया, वहां पे एक अनुसूचित जाति की हिंदू बालिका के पास मुझे एक डायरी मिली। उस डायरी में उसने ये लिखा हुआ था कि मेरे 10वीं कक्षा के इम्तिहान सर पर हैं। ये 2020 में उसने डायरी लिखी है और मेरे पास 11 तरीके के दस्तावेज नहीं है। मुझे चिल्ड्रन होम में बताया गया है कि जिनके पास 11 तरीके के दस्तावेज नहीं है वो एनआरसी में बाहर कर दिए जाएंगे और उनको
उनको परीक्षा देने की पात्रता नहीं होगी, तो मुझे डर है कि मैं परीक्षा दे पाऊंगी या नहीं, इसलिए मुझे सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट में जाना चाहिए क्योंकि मुझे परीक्षा देना। वाह, किस तरीके का जहर बोला गया। हम जो बिहार में कौन सा एनआरसी आया अभी, या कौन सी चर्चा हुई अभी। और ये जो सीएए का कानून है, ये अनुसूचित जाति वर्ग के कौन से बच्चों को बाहर कर रहा है, लेकिन जहर घोलने का काम किया गया है। दूसरी बात, एक और मुझे बच्चा मिला दिल्ली में, इनके चिल्ड्रन होम में। उस बच्चे ने मुझसे कहा कि मोदी जी हमेशा हिंदुओं का पक्ष लेने की बात करती। मोदी, ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में सिखाया गया है बच्चे को। मोदी जी पाकिस्तान से हरदम लड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है। ये ऐसे देश के बारे में बच्चे को बताया गया जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों को एंगुश लगा के उड़ा देता है। ये ऐसे देश के बारे में बताया गया जो घुसपैठ के माध्यम से दिन रात आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से हमारे देश के साथ दुश्मनी किए हुए है। ऐसे देश के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है, भाई पाकिस्तान तो दोस्त है, और मोदी जी गलत करते हैं जो पाकिस्तान को गाली देते हैं। तो आप बच्चों के टेंडर एज में दिमाग में ये जहर भर देंगे तो निश्चित रूप से, जिसको फिर पत्रकारों की भाषा में अर्बन नक्सल्स तैयार किया जाना क्या जाता है, तो उस तरीके की फैक्ट्री लगाई हुई थी इन्होंने। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, कौन सा कानून लगता है इसमें क्या आप कर सकते हैं? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 83 है। धारा 83 निषिद्ध करती है कि बच्चे का किसी भी प्रकार के अनैतिक गतिविधियों में उपयोग किया जाए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 है जो निषिद्ध करती है कि बच्चे को किसी भी प्रकार से ट्रॉमाटाइज किया जाए, मेंटल हैरासमेंट किया जाए, उसके दिमाग के विकास की गतिविधि को बाधित किया जाए। तो जगह जगह इन लोगों पे इस मामले में एफआईआर दर्ज हो रही है, मुकदमे कायम हो रहे हैं। तो बात यह है कि बातें निकल के सामने आ रही है। हर्ष मंदर तो कहते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। झूठ बोलता है, एकदम झूठ बोलता है। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले हफ्ते की बात है, रांची की, झारखंड की, एक अनुसूचित जनजाति की बच्ची के साथ हर्ष मंदिर से जुड़ी हुई संस्था में यौन शोषण हुआ। उस संस्था के गार्ड ने किया, और इस मामले को जब हेडक्वार्टर तक, यानी जहां ये हर्ष मंदिर और उनके एनजीओ के लोग निरंतर संपर्क में रहते हैं, उनके अंतर्गत ये हेडक्वार्टर चलाया जाता है, वहां ये मामला बताया गया तो ये कह दिया पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है, गार्ड को नौकरी से निकाल दो। जब हम लोग वहां पहुंचे तो इस बात की रजिस्टर में पूरी हमको एक दस्तावेजीकरण मिला कि हेडक्वार्टर से हमको ये कहा गया है, हमने एफआईआर कराई, अब लोग जेल जा रहे हैं। तो बच्चों के हित के लिए तो ये लोग कोई काम करते नहीं। मजे की बात ये है कि इन चिल्ड्रन होम्स के नाम पे इनके पास मल्टीपल सोर्सेज से करोड़ों की फंडिंग आती है। बच्चों के पास बाथरूम तक नहीं है और होम्स में, बच्चों के पास खाने के पर्याप्त बर्तन नहीं है, बच्चों के कपड़े एक बार उनको पहना दिए तो जब फट जाएंगे तब उतारे जाएंगे, बच्चों को नहलाया नहीं जाता, बदन से बदबू आ रही है। इतनी बुरी स्थिति में बच्चों को रखा गया है, डिस्पाइट कि मल्टी कनेडियन एम्बेसी से तो पैसे लेते हैं, जर्मन चर्च से तो पैसे लेते हैं, भारत सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री से तो पैसे ले रहे थे, बिहार सरकार से पैसे ले रहे थे, दिल्ली सरकार से पैसे ले रहे थे, मल्टीपल सोर्सेस से पैसे ले रहे थे, और उसके बाद भी बच्चों पर खर्च नहीं करते। बहुत आंख खोलने वाली बात बताई प्रियंक जी, कि हम तो केवल न्यूज देखते हैं, बड़ा स्लांटेड न्यूज होता है, और एनजीओ दया के पात्र है, एनजीओ और मानवीय काम कर रहे हैं, और आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा सुनना मिलता है। तो ये जो बात बताई, इसके बारे में रामी जी आपका क्या रिएक्शन है? आपके लिए भी न्यूज होगा ये। You know, first of all, Ratan ji, ye mere ko, I think I should be very clear about this, that, you know, I've been traveling in and out, and when you called me up to ask me to join this group, I immediately said yes. Of course, you know, first it was because it was you, and, you know, I hold you in the highest regard. But second, because this is the kind of subject that we don't see being talked about, we don't see being picked up. You know, हमने सोशल मीडिया में ये जो लास्ट केस जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, where the order has been commuted to 20 years for such a heinous crime, I didn't see it anywhere on social media. You were the only person who picked it up. Why should that be the case in this day and age, wherein we are picking up every news that comes that can give any sort of political mileage, social mileage, can give popularity, but news like this is not important to anybody because it's not self-serving, you know. So considering what Nirbhaya
can't create the kind of buzz and kind of very hot social reaction, which is right reaction. But why that is missing now? That's something that Because really and I can't understand. Absolutely, Ratan ji, क्योंकि ये चीजें are not daily running things on news channels. These are not giving popularity coverage to people. Is the only reason I can find, because you tweeted it. You sent the tweet to me. I looked at it. I was shocked. I tweeted it. Apart from that, there was nobody else. And what Priyank ji has said, and again, somebody whose work I have followed very closely, and I have great respect for the kind of strides he has made in a department which we had not heard of before, is absolutely shocking, and he's given us a really a very comprehensive picture of what has been happening behind the scenes. But I'd like to add here that, it's really important that we hold society responsible as well. For how long are we going to ask the government, government bodies, political parties, how long are we going to hold them accountable? Because it's the easiest thing to do. कि उनने क्या किया है, वो क्या कर रहे हैं, वो तो करेंगे जो उन्हें करना है, we've elected them, and they will do, if there is political will, they will do what they have to do. But the larger responsibility lies on society as well. Where is the kind of outrage that we should have seen on this order? Why should this order be just passed off as with all due respect, the women fancy of a judge who probably is thinking of his future more than anything else? You have used a word today, called woke, and very often we wonder, what does it mean? Because everybody has their own meaning of this word. To me, it really means that this culture that we are living in today, this woke culture, is a culture of utter selfishness, utter self-serving ambition, which is built on other people's lives that are destroyed for the furtherance of your own personal career and ambitions. This is what woke culture is. And I think this has to be called out. Like you rightly said, we have orders being passed saying that groping is not a very big crime. We have orders being passed that, somebody's forcing you to get married or pushing proposals at you. That is not a big issue. Ask me, I'm a woman. How debilitating it is for women to fight this on multiple different levels. Up legal issues to chodo, up police ke paas jana to chodo. Society mein, you don't have the freedom to tell your family. So where is this going to? Because you will be judged. So what sort of accountability can we ask of other people when around us we don't have that kind of accountability? Most of the perpetrators involved in sexual abuse are people known to the child. We have, I think, 19% of the youth population, which is, I think, under the age of 18 in this country. Yet our society doesn't feel that there is a need to not be embarrassed about these things, to take these issues up with the utmost seriousness and responsibility. We have the youngest population in the world, and still we are not broad-minded enough. We say, we can say we are broad-minded enough in the way we dress, we are broad-minded enough in the way we talk, but we're not broad-minded enough to bring these situations to the fore, which is very, very embarrassing. And let me also add, Priyank ji brought a very important point to the fore. When we talk about these issues, we talk about sexual abuse, but there's abuse of neglect against children. There is abuse, psychological abuse against children. There is physical abuse against children. But now we are seeing this political abuse against children. Yes, it's very shocking that NGOs which are supposed to protect children, who make money out of protecting children, are using children as a political battlefield. They have used children and women as human shields. This is cowardice to another level. Men have hid behind the masters of these, the people who have designed these protests have hid behind women and children. If something happens, it will happen to them, and they will still be able to get away with it because they will say, "Arey, ye to bache the." So kab tak chalega? And these are the same people who consider themselves the moral, safeguarders of society. Priyank ji,
एक इश्यू जो अभी हम अगला एड्रेस कर रहे हैं, उसके पहले कि मैं वापस वो 4 साल की बच्ची के केस पे आऊं, जो कन्वर्जन का रैकेट चलता है बच्चों के साथ में, जिसके बारे में आपने कुछ संज्ञान भी लिया है कि बच्चों को स्कूल के अंदर, अलग अलग संस्थाओं के अंदर उनको पंथ परिवर्तन के लिए किस प्रकार से मजबूर किया जाता है। 2 केसेस तो अभी हुए, एक प्रिंसिपल को भी रोका गया, उसके पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके बारे में किस प्रकार की आप मानते हैं कि प्रोटेक्शन हो सकता है और इसके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 भाग 3 में बड़ा स्पष्ट प्रावधान करता है कि बच्चों को उनके धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती जब तक कि उनके माता पिता से इस बारे में सहमति ली नहीं गई हो। इसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन देश के अन्य भागों में होता आया है और लगातार किया जा रहा है। हमने कई जगह चिल्ड्रन होम्स में बच्चों को रख के कन्वर्ट करने के प्रयास के मामलों को देखा। हमने ये भी देखा कि जेल के अंदर जो औरतें रह रही हैं, उनके बच्चे 5 साल की आयु तक उनके पास रह सकते हैं, जब बाद में बाहर आते हैं तो उनको एक जगह रख के सामूहिक रूप से कन्वर्ट किया जा रहा था। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जो पूरी दुनिया में बच्चों के सार्वभौमिक बाल अधिकार को प्रतिपादित करने वाला एक डॉक्यूमेंट है, वो भी बच्चों को राइट ऑफ आइडेंटिटी देता है और ये कहता है कि बच्चों की आइडेंटिटी किसी भी रूप में बदली नहीं जा सकती। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो वनरेबल हैं, जो इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, जो दुनिया के सताए हुए हैं। उनका धर्म बदलना हमने देखा। नलगोंडा डायोसिस है एक दक्षिण भारत में, वहां उन्होंने कनाडा की एक एनजीओ के साथ एक एग्रीमेंट किया और कनाडा की एनजीओ इनको कुछ पैसा दिया करती थी। पैसे के बदले जो बच्चे इस नलगोंडा डायोसिस के ऑर्फनेज में रहा करते थे, ये उन बच्चों को प्रदान करता था शिक्षा, ये उन बच्चों को प्रदान करता था स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, एक शेल्टर और एक धर्म। तो एग्रीमेंट करके पैसों के बदले धर्म यहाँ दिया जा रहा है, तो ये सब तो भारतीय संविधान का और कानून का सरासर उल्लंघन है। ऐसे अनेकों मामले हमने पकड़े। हमने वडोदरा में देखा, मिशनरी ऑफ चैरिटी के एक चिल्ड्रन होम में सारे बच्चों के सराहने बाइबल रखी हुई हैं। हाल ही में हमने दिल्ली में भी ऐसा ही एक मामला देखा। देश में मैंने अभी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक ऐसा मामला देखा, बच्चों के नाम बाइबल पर लिखे हुए हैं, बच्चे बाइबल पढ़ते हैं और वहां पे जो मौजूदा स्टाफ है वो कहता है जी ये तो अपने मन से बच्चे पढ़ते हैं, हम तो देते नहीं किसी को। तो ये झूठ बोलते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, कानून की खामियों में अपना रास्ता बनाते हैं। दिक्कत ये होती है कि प्रशासनिक अधिकारी इन चीजों को समझते नहीं है। सटल वे में किया जा रहा आस्था का जो परिवर्तन है वो कानून के विरुद्ध है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है तो इस तरीके के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो बताए नहीं गए। हमने इसके भी कारण जानने की कोशिश की तो आपको जानकर हैरानी होगी। गिलानी करके एक व्यक्ति है जम्मू कश्मीर में, जिसकी डेथ जब 2003 जब संसद में हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, तो गिलानी उस चार्जशीट में एक्यूज था। उसका मुकदमा जिस वकील ने मुफ्त में लड़ा और इस प्रकार के टेररिस्ट नक्सलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जिनकी लगातार सिंपैथी है, ऐसे लोग लबासना में ट्रेनिंग देते हुए पाए गए ब्यूरोक्रेट्स को, जब उनके पढ़ने का, जब उनके ट्रेनिंग लेने का समय होता है। हमने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक भी नहीं है, जिसकी पत्नी नक्सलाइट्स के साथ संबंध होने में चार्जशीट हुई है, वो सो कॉल्ड पत्रकार भी लबासना में जाकर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। तो हम सटल वे में उनकी मानसिकता इस तरीके की बना देते हैं कि ये जो हो रहा है ये ठीक ही है, ये गलत है। इसलिए अब ये सरकार इस दिशा में काम कर रही है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पे परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई चाइल्ड राइट्स पर्सपेक्टिव की जब बात करते हैं, बच्चों के अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करिए। ये बाहर के मॉडल्स को उठा के जिसका तस यहाँ पे इम्प्लीमेंट प्लीज मत करिए। बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया। इसी कारण आप जैसे लोगों के कारण ही शायद धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर भारत का रैंक बहुत नीचे जा रहा है।
आप उनको धार्मिक स्वतंत्रता की बात आपने की है, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा। एकदम झूठी रिपोर्ट है यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की। देखिए, वो रिपोर्ट 3 रिपोर्ट्स के आधार पर बनाई जाती है। उनमें से एक रिपोर्ट होती है परसिक्यूशन रिलीफ की। अब परसिक्यूशन रिलीफ की जो रिपोर्ट है भोपाल से प्रकाशित होती है, शिबू थॉमस नाम का एक प्रोपेगेंडिस्ट जो आदमी है, प्रोपेगेंडा फैलाने वाला, वो करता है। ये शिबू थॉमस जो है, इसकी रिपोर्ट में उन्होंने कहा, 2019-20 की जो रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित की थी, उसमें उन्होंने कहा कि भारत में क्रिश्चियंस के ऑर्फन एजेस को रात में जला दिया जाता है। ओहो, उन्होंने कहा कि भारत में चर्च के पादरियों पे बच्चों से यौन शोषण के झूठे मुकदमे बना दिए जाते हैं। ओहो, हमने जिम्मेदार कमीशन की तरह उनको नोटिस किया, सरकार को, मध्य प्रदेश में रिपोर्ट छपी थी, मध्य प्रदेश सरकार को हमने नोटिस करके बोला इस तरीके के सारे मामलों की सूचना हमको दी जाए। सरकार ने उनसे पूछा, भाई जहां भी ऐसा हुआ है तो गलत हुआ, हम उसकी जांच करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रतन जी, एक भी घटना की सूचना वो हमको नहीं दे पाए, नॉट अ सिंगल केस। कितना बड़ा प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है, आप अंदाजा करिए। आप सोचिए जरा, एकदम झूठ लिख रहे थे और ये रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पढ़ा गया, और इस रिपोर्ट को यूएनजीए में पढ़ने के कारण यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में इसको शामिल किया गया, और ये झूठी रिपोर्ट थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार अभी भी सिटिशन की एफआईआर करने राजी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन भारत में स्थितियां बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा प्रोपेगेंडा करके प्रदर्शित किया जाता बिल्कुल, वो हम जानते हैं। अभी मैं आपके पास आखिर में आऊंगा, इससे पहले मैं रामी जी के पास जाऊंगा। जो अभी जजमेंट आई जिसके अंदर 4 साल की बच्ची के विभत्स हत्या हुई, बलात्कार हुआ, और उसके अंदर विशेष बात ये थी कि जो व्यक्ति था उस घर में रहने के लिए उसने अपनी आज्ञा मांगी उस घर से, पिताजी ने नहीं कही। उसके बदले के तौर पर बच्ची की साथ जो भी नृशंस कार्य वो हुए, the most horrid kind of crime that could be described in any way. And after this, after having been convicted by all the courts on all counts, the Supreme Court says that every criminal has a future. बच्चे के फ्यूचर की बात कहाँ की मुझे नहीं पता. When I read this, I cannot sleep peacefully at night. I'm so disturbed. So what would be happening to the child? Child has gone. What is happening to the parents? Just imagine. So on that, as a woman, as a social activist, what was the reaction? What do you think would be actually be reaction of the society? Ratanji, first of all, let me respond back to what Priyank said. USCIRF की तो कम ही बात करें, अच्छा है. USCIRF, I remember 2009 में they rated India under Pakistan for religious freedom. So we don't know what their parameters are, but China had given an appropriate rebuttal. They had taken out their own religious freedom report, which had put United States under every other country in the world. So I think that's the way to tackle this. Secondly, Priyank is quite right. You know, when you asked him about conversion and all, I have noticed this as well in the Northeast. Yes. When insurgency was at its peak, that time a lot of the women who had lost their husbands had been thrown out of their homes with their children. एंड उनको पता नहीं था वो कहाँ जाए, यू नो, इतने उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होती थी, तो यू नो दे कुडंट एक्सेस हेल्प. मगर काफ़ी ऐसे नोटोरियस एंड डूबियस चर्च ग्रुप्स यूज्ड टू कम टू देम, would tell them, if you convert your children, we will give them free education. These are interviews I have taken personally. This sort of manipulation, you know, is something that completely goes under the radar, you know, because we already have so many other grievous issues that we have to deal with. Like you said, this judgment that has come out, you know, where obviously people are concerned about the welfare and the hope that this perpetrator of such a heinous crime might have, you know, which absolutely is shocking to me. It is morally and ethically unacceptable to me that you are talking about this man's rights, this man's future, when this entire family for generations is going to carry the psychological scar of what has happened to them. मतलब वो बच्ची के साथ जो हुआ, वो तो बेचारी 4 साल की थी, वो तो बोल भी नहीं सकती है. You know, we cannot even comprehend or you know, even begin to understand what she went through.
even if she was here today, I don't think we would have ever been able to comprehend. But what I can tell you is, you know, uh, in a way, I may be a social activist, but more so, I'm a sociologist and an anthropologist. And I observe society very closely. Of course, I do it from the lens of religion and conflict. But, I've seen families, what they go through. It's not just about what has happened to the child, it is about now what is going to happen to the parents. There are many cases where the parents can never recover, not just psychologically but with each other. It breaks relationships, because blame game chalu ho jata hai, ya to just grief takes over. Number two, I also think the extended family, the trauma that it will go through, you will never be able to allow your child to go out. I'm not married, I don't have children, but as a educated, even if I was an uneducated person, as a human being, I can empathize with this situation to an extent where I can tell you, if something like this had ever happened, I think that would have been the end of my life. So we're not just talking about the child's life here, we're talking about the father's life, the mother's life, the parents, the grandparents, the cousins, the sisters. Rami, also look at the impact on society. How would society and criminals take it? When you give bail to criminals, to rapists, they come out and start threatening the families. We know that. Still, they get the bail. They kill somebody because there's a witness. Still, they give the bail. This is a twofold issue. The issue is not just on the kind of messaging that has gone out to criminals. This is not a deterrent. What are you saying? Ki 20 saal ke baad chhut jayenge, you can lead your own life. Every other country, pedophiles are marked. If they are living next to you, you know that they are living next to you, because if it is every parent's right to know who is in their vicinity if they have children. यहाँ ये कल जाके he will be, your staff member, or he'll be working in your house. He could get a silai machine. He can get a silai machine, matlab, he can get 10,000 rupees again, or he can get more. Can give him an award for the greatest reformer, in society. Of course, this is an issue, because what sort of messaging goes out? What sort of what are we telling people that it's okay? जैसे उन्होंने कहा कि चौकीदार को हम नौकरी से निकाल देंगे. I mean, this is a psychological deficit. A normal man doesn't do things like this. This is उसे नौकरी से निकालना, या उसको 20 साल great comfort में रखना so that he becomes a better person doesn't change his psychological leanings. But the second problem here again, Ratanji, I would like to point out, is with our society. ये responsibility सबकी बनती है, teachers की बनती है, parents की बनती है, neighbors की बनती है. I mean, more often than not, people are happily willing to hide it also because they find it embarrassing. And this is not just with children, this is also with women. अगर rape हुआ, अगर molest हुए, अगर गली के गुंडे आपको छेड़ रहे हैं, आप छुपा के रखो, क्योंकि somehow वो responsibility हमारे shoulders पे आती है. मतलब उनके ऊपर कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, उनके ऊपर उनके घर जाके कोई नहीं बोल रहा है व्हाट सॉर्ट ऑफ चिल्ड्रन हैव यू रेज्ड. गलती ये बच्चों की होएगी, गलती ये औरतें की होएगी. व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स इज शी वेयरिंग, व्हाई डिड द चाइल्ड गो आउट टू प्ले टिल दिस लेट. Everything seems to be our society wants to hide it. Prime example, like I brought up before, is the fact that why was this not picked up on social media? Means everything that is picked up on social media is only political, because that gets you mileage, that gets you followers. We don't want to face the evils of our society. This is not a perfect society, and we need to accept that, because unless we accept that, it's not going to happen. Abhi pandemic ke time mein, everybody knows that domestic abuse went up by leaps and bounds. But domestic abuse against women, nobody probably even knows the kind of abuse that children went through. You are locked with the perpetrator in a house for 6 months. And this is the problem. Like we say that, these are things that we should talk about, and these are things that we should address openly. We're not doing enough of that. हम लोग ये भी कहने में कतराते हैं कि क्या हुआ है, because we don't want to be reminded of it. Of course, we don't want to be reminded of it because it's soul shattering. It makes us question. And if that is the kind of insensitive judiciary that we see today, naturally, that nothing is going to come out of it. That is the kind of impression that has gained ground now. Absolutely, because everybody is thinking about अपना future career के बारे में,
कि आगे जाके we want a Nobel Prize, we want a society to label us in a way where we look like better people. That's why I said this entire woke culture is built on the corpses of people who have been denied justice just so that they can make their careers. And they need to be called out. And another problem is, Ratanji, I think because of the way our social media has become, the way we have started consuming information, our information is in 5 lines. There is no in-depth reading. There is no commitment to any issues. Twitter पे जो हमने पढ़ लिया, हमने Instagram post पे जो पढ़ लिया, बस वही है. Where are the kind of discussions, the kind of information, the kind of in-depth data that, let's say, Priyankji has given us today? Where is that kind of consumption any longer? We only are living a very superficial sort of an existence where everything is aimed towards social media consumption. So, प्रियांक जी, मुझे पता आपको जाना है. मैं आखिरी सवाल करूंगा जो जिस कारण से मैंने प्रोग्राम लिया एक्चुअली, कि ये जो जजमेंट्स आई जो मैंने कार्यक्रम के शुरू में बताई, जिसका बहुत बड़ा परिणाम बच्चों के जीवन पर, उनके माँ बाप पर और समाज के ऊपर पड़ सकता है, उसके बारे में जब ये जजमेंट आई है 4 साल की बच्ची के बारे में, तो एज एनसीपीएससीआर चेयरमैन आपके मन में उसके बारे में क्या, मैं ही नहीं कहूंगा कि आपके मन में क्या है, एक मानव के नाते आपके मन में वही आया होगा जो मेरे मन में आया होगा लेकिन एज ए चेयरमैन आपको क्या लगा कि इसके ऊपर क्या हो सकता है, इसका इलाज क्या होना चाहिए? इसकी एक तो हो सकता है कि जजेस की री एजुकेशन की जाए, जैसा कि एक प्रथा चाइना में होती है कि उनको शुरू से बताया जाए कि चाइल्ड क्राइम क्या है और ये ह्यूमैनिटी के किस प्रकार से मानव के ऊपर अत्याचार है, ये उनको बताया जाए. लेकिन दूसरी ओर इसका एक करेक्टिव एक्शन, वो एज ए चेयरमैन एनसीपीसीआर आपके मन में क्या है? देखिए, कुछ वक्त पूर्व महाराष्ट्र का एक ऐसा मामला आया था जिसमें ऐसा कुछ इंडिकेशन था कि कपड़ों के ऊपर से अगर उसको छुआ गया है तो सेक्सुअल एब्यूज नहीं है. हमने उसमें महाराष्ट्र सरकार को ये बोला कि भाई आपके वकील जो हैं वो हाई कोर्ट में इस बात को शायद ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, लेकिन लेटर स्टेज पे उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस में लिया और हमने अपील करने के लिए कहा था, साफ साफ कहा था, लेकिन भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो सुप्रीम कोर्ट इस विषय को ले गए. सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे विषय को सुना और उसमें फिर अप्रोप्रिएट निर्णय आया. इसी प्रकार का उत्तर प्रदेश का भी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक मामला थोड़े दिन पहले हमारे सामने आया और हम लोग उसमें अपील करने के लिए हमने उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिखा और उत्तर प्रदेश सरकार उसमें अपील करने जा रही है, उसने हमको सूचना दी. तो जहां कहीं भी देखिए, भारत की न्यायिक व्यवस्था में जो रेमेडीज मौजूद हैं, जहां कहीं हमको लगता है कि हम उस निर्णय से असहमत है, वो निर्णय ठीक नहीं है, मैं इस पर्टिकुलर निर्णय की बात नहीं कर रहा, मैं एक जेनरिक बात बता रहा हूँ, तो हमको निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट अपील में जाना चाहिए. जहां तक इस पर्टिकुलर निर्णय की बात है, जाहिर है मीडिया में, सोशल मीडिया में, समाज में कई जगह पे इस बारे में चर्चा हुई है. हम भी एक लीगल टीम के माध्यम से इसको अध्ययन कर रहे हैं और अप्रोप्रिएटली जो सरकार उसमें इन्वॉल्व होगी, हम सरकार को फिर जो भी रिमेडियल एक्शंस के लिए पुनः न्यायालय के पास जाने के लिए जैसा भी होगा, हम सरकार के साथ बात करेंगे. लेकिन आपको लगता है कि इस प्रकार के निर्णय से बच्चों के स्थान परिवार के अंदर, वो जो एक रिस्क फैक्टर है सोसाइटी के अंदर, जब अपराधियों को लगेगा कि इतनी लीनियंसी होती है तो उसका क्या असर होगा? क्योंकि आप बच्चों के केसेस को बहुत नजदीक से देखते हैं. देखिए, जाहिर सी बात है कि बच्चों के अपराधियों के साथ किसी प्रकार की लीनियंसी की कोई गुंजाइश होना ही नहीं चाहिए. किन परिस्थितियों में ये निर्णय इस तरीके के आ जाते हैं, हमको पूरे केस का, ऑर्डर का अध्ययन करना एक आवश्यक होता है. उसके बाद ही हम पर्टिकुलर इसके बारे में कुछ कह पाएंगे. लेकिन जो हमको एक न्यायिक वातावरण देश में स्थापित करना है, वो इस प्रकार का स्थापित करना है कि सख्त से सख्त सजा उन सभी ऑफेंडर्स को, उन सभी लोगों को हो जो बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे कि एक नजीर कायम की जा सके और एक अपराधी का हश्र देखकर 10 दूसरे लोग डर सके कि इस तरीके के अपराध करने पे तो भाई बहुत बुरी स्थिति होती है, जान जाती है, पूरा जीवन खत्म हो जाता है और कोई फ्यूचर, कोई कैरियर बचता नहीं है. वो नजीर कायम हो सके, वो वातावरण बनाने का प्रयास समाज को, सरकार को, न्यायालय को, हम सभी को मिलकर करना है. बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांक जी. बहुत नब्बे तुल्य शब्दों में आपने अपनी प्रतिक्रिया दी. हम नागरिक के नाते हम तो नब्बे तुल्य शब्दों में नहीं दे सकते,
हम तो अपने भाव प्रकट करते हैं क्योंकि हम पे कोई कानूनी जिम्मेवारी है नहीं, लेकिन समाज के नाते मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही एक कठिन और मन को उद्वेलित करने वाला ये विषय था। इसके लिए मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए, क्योंकि आप इस मामले में बहुत गंभीरता से इस पे पर रोज काम करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, इसलिए आपसे हमने बातचीत की। और रामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्त्री के नाते, एक समाज के अंदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाते अपने अपने विचार दिए। इस पे और भी चर्चा होनी चाहिए मुझे लग रहा है, और भी चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। इस विषय को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत एक गलत इससे लोगों के ऊपर इसका विचार जाता है। इसके लिए हम ये विषय आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।